चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। We must reject as foible and unsound the submission to return to the ballot paper system. They have held various other comments in favor of the electric voting machines, and they have said that this process has actually resulted in a very robust and a very strong, fair and equitable election process. The toolkit has now come out with a Delhi resolution on 28th May. We don't know who are the parties, who are the people behind this Delhi resolution. There are no signatories, no names, but certain political parties tend to now support such vociferous tendencies, such effort to undermine India's democracy. This is a regular sinister attempt carried out by certain bodies in the guise of civil societies who are very often fronting for the opposition, and the Bharatiya Janata Party and the NDA strongly condemns such efforts by the opposition parties and by certain civil society groups. They do not leave anybody whatsoever. They not only mistrust the electoral process, the judiciary, our autonomous bodies, our regulators. They try to create an unrest among the citizens. And just a few minutes ago, the leader of the Congress party, Shri Rahul Gandhi ji, has today even passed very uncharitable comments about the media. In responding to the exit polls, he has said this is not an exit poll by pollsters. It is the Modi media poll, and I strongly condemn the effort to put pressure on the media, the effort to try and paint the media black and to undermine the work that the media is doing. We strongly condemn the Congress party and the toolkit and their associates who are working against India's interests and are damaging India's credibility, India's rich tradition of democracy across the world. We are proud of our electoral process. There have been regimes changed in India peacefully. We have had governments being formed in the states of all different parties across the country. And when these governments are formed of the opposition parties, the verdict is fine. The EVM machines are fine. When they are losing an election, they are looking for a scapegoat. They are looking for clutches to justify the defeat that the people of India are giving to them. They do not want to accept the people's verdict, but want to again and again undermine India's democracy. Thank you. मित्रों, आज माननीय निर्मला सीतारमण जी, देश की वित्त मंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एक शिष्टमंडल निर्वाचन आयोग और उनके कमिश्नर्स को मिला और हमने 4 मांगे इलेक्शन कमीशन के सामने पेश की हैं। हमने मांगा है और अनुरोध किया है माननीय इलेक्शन कमीशन से कि वो सभी अधिकारी जो काउंटिंग प्रोसेस में लगे हुए हैं उनको पूरी तरीके से काउंटिंग प्रोसेस की जानकारियां दें, उनकी ट्रेनिंग अच्छी तरीके से की जाए और छोटी से छोटे विषय जो काउंटिंग प्रोसेस के साथ जुड़ा हुआ है उसको बड़े गंभीरता से, गहराई से और संभल के किया जाए, जिससे किसी भी प्रकार का डिविएशन या बदलाव
कोई भी स्टेशन में देश भर में काउंटिंग में ना हो। साथ ही साथ हमने मांग रखी है कि जो काउंटिंग प्रोसेस है और उसमें जो लोग जुड़े हुए हैं, जो 1.5 करोड़ अधिकारी पूरे इलेक्शन प्रोसेस में जुड़े थे, उसमें से जो लोग काउंटिंग में जुड़े हैं उनकी और सभी काउंटिंग एजेंट्स की भी सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए कड़े कदम उठाए जाए और निगरानी रखी जाए कि सही माने में काउंटिंग प्रोसेस ठीक से हो और किधर भी किसी प्रकार का गलत गतिविरोध ना हो, कोई वायलेंस ना हो, कोई मारपीट ना हो। सिक्योरिटी और सुरक्षा बलों को तट पर रखा जाए। ख़ास तौर पे हमारे पहले के अनुभव में कुछ राज्यों में कोशिश की गई है कि काउंटिंग प्रोसेस में दखल अंदाजी देने की कुछ राज्य सरकारों द्वारा भी ऐसी खबरें आई हैं पहले के चुनाव में, जहां कुछ राज्य सरकारों ने दखल अंदाजी देकर काउंटिंग प्रोसेस को विशिएट किया, ख़राब किया। ऐसे में इलेक्शन कमीशन कड़ी निगरानी रखे और सुरक्षा बल भी अपना काम तैनात रहे। तीसरा, हमने जो ये टूल किट चल रही है, जो ये दिल्ली रेजोल्यूशन जैसे कारनामे कुछ सिविल सोसाइटीज़ और NGOs कर रहे हैं और कुछ विपक्षी दल विशेषकर कांग्रेस और उनके मित्र पक्ष जिस प्रकार का एक लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भारत के निर्वाचन के पूरे प्रोसेस को प्रश्न चिन्ह उठाया जाए या उसके ऊपर कुछ सवाल जवाब करके उनको डराया धमकाया जाए, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन बहुत कड़े कदम उठाए और उनके ऊपर एक्शन लिए जाए। और साथ ही साथ हमने अनुरोध किया है कि वो जनता के बीच एक स्पष्ट अपना वक्तव्य रखें जिससे वो बताएं कि काउंटिंग प्रोसेस और पूरा इलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से बड़े सुगम तरीके से चलाया गया है। और अगर कोई भी इसके बारे में गलतफहमी पैदा करे या देश या विदेश में भारत के निर्वाचन के काम के अंदर दखल अंदाजी दे, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये हमें इसलिए करना पड़ा क्योंकि कुछ NGOs और उनके मित्र पक्ष विशेषकर कांग्रेस और इंडिया अलायंस के उनके सहयोगी समर्थक बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत की जो स्वायत्तता से चलने वाली ऑटोनमस बॉडीज़ हैं उनके ऊपर प्रहार किया जाए, उनके कामकाज में दखल अंदाजी दिया जाए, मीडिया के अंदर सवाल जवाब उठाकर एक लोगों के अंदर एक अनिश्चितता का वातावरण बनाया जाए। और बार बार जो इनका कोशिश रहती है विपक्ष की कुछ पार्टियों की कि हमारे सुप्रीम कोर्ट हो, हमारे कोर्ट हो, हमारी इलेक्शन कमीशन हो, हमारे अन्य रेगुलेटर्स हों, इनके कामकाज में उनके ऊपर प्रेशर लाया जाए, उनको थोड़ा डरा धमकाने की कोशिश की जाए, ये कोशिश की जाए कि उनके काम पे ऐसे अनाप शनाप प्रश्न उठाएं जिससे जनता के अंदर उनके कुछ सवाल जवाब खड़े हो जाए। हमने हाल में देखा एक दिल्ली रेजोल्यूशन मई 28, 2024 को पारित की गई। किसने पारित की गई ये पता नहीं, कौन इसके पीछे है, कोई सिग्नेचर नहीं है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल इसका समर्थन करते हुए लोगों के बीच प्रश्न चिन्ह उठाने की कोशिश कर रहे हैं और भारत के इतने बढ़िया तरीके से चलाए गए इलेक्शन प्रोसेस पर दुनिया में भारत को बदनाम करने की ये एक साजिश इस टूल किट और उस टूल किट के पीछे जो लोग हैं उनसे की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़ी निंदा करता है और 26 अप्रैल 2024 को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय की सराहना करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी प्रश्न EVM पर या VVPAT पर बेबुनियाद है, उसका कोई निराधार नहीं है, वो उसका कोई आधार नहीं है, पूरी तरीके से निराधार है। और कोई भी मांग कि फिर एक बार बैलेट पेपर पे जाया जाए, ये स्वीकृत नहीं है, ये देश को पीछे लेके जाएगी। और जो लाभ EVM के हैं उन्होंने अपने वर्डिक्ट में
सुनाए हैं। हम चाहते हैं कि मीडिया के ऊपर भी जो कांग्रेस पार्टी और उनके नेता राहुल गांधी जी बार बार प्रहार करते हैं वो भी बंद किया जाए। हाल में ही थोड़ी देर पहले उन्होंने मीडिया के साथियों को भी बहुत बुरा भला कहा है। कल के एग्जिट पोल के बारे में अपने वक्तव्य देते हुए मीडिया के ऊपर अनाप शनाप आरोप लगाने की कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे सभी कदम जो भारत की डेमोक्रेसी, भारत के लोकतंत्र के खिलाफ है और भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को आघात पहुंचाते हैं,